Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. Today, in the chapter of complexes of pi acceptor ligands, we will study structure of metal carbonyls. This presentation is given by Hassan Raza of the morning session, and he has done good work. So first we will start from mononuclear carbonyls. The mononuclear metal carbonyls, they contain only one metal atom as the name indicate. So in mononuclear metal carbonyl, only one metal atom will be present, and they have comparatively simple structures. Examples of mononuclear carbonyl is nickel tetracarbonyl, which is tetrahedral. You can see here the structure. This is a simple structure, and this is the 3D structure of carbonyl of nickel, in which you can see nickel tetracarbonyl. And as you can see that this is टेट्राहीड्रल. ठीक है, अब इसमें जो 3D स्ट्रक्चर है, इसमें ये निकल का एटम है, इसके बाद ये कार्बन का है, और ये आपको ट्रिपल बॉन्ड 3 नजर आ रहे हैं, और ये जो है ऑक्सीजन का एटम है. So as you can see in the 3D as well as the simple structure, that the structure is tetrahedral, and the carbonyl of iron, right? Iron pentacarbonyl. So it has a trigonal bipyramidal shape. So you can see that it has trigonal bipyramidal shape, right? यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ ट्राइगोन, यानी 3 कोनों वाला. और इसके साथ अगर ये इस तरह से ये टर्मिनल्स पे इस तरह से भी हो तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? दिस इज आर ट्राइगोन, और ये अलहदा से 2 कॉर्नर्स हैं, सो दिस विल बी टर्म्ड एज trigonal bipyramidal. And this is the carbonyl of chromium, right? So this is hexacarbonyl. ठीक है, hexacarbonyl of vanadium, chromium, molybdenum and tungsten. These are octahedral. So this structure, this is called as octahedral, and this is the 3D structure. And in this 3D structure, this central atom is the chromium, right? And this is for carbon, and this is oxygen, right? अब एक्चुअली ये देखें, यहाँ पर अगरचे ये भी ट्रिपल बॉन्ड ही है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर आप यहाँ देखें, यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जाहिर हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं. लेकिन ऐसे भी चलता है, वो हमारी बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप होती है, और इससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है. तो इस तरह से these are the 3D structures and these are the simple structure. So nickel tetracarbonyl, this is tetrahedral. Nickel iron tetracarbonyl, sorry, iron pentacarbonyl, this is trigonal bipyramidal, and chromium hexacarbonyl, this is octahedral, right? So these are about mononuclear carbonyls. So the structure of dinuclear metal carbonyls, it has 2 metal atoms in the structure. ठीक है, तो dinuclear as the name indicate, it involve either metal bonds or bridging carbonyl groups or both. So now we will see shortly what are bridging carbonyl groups. अगरचे पिछले लेक्चर में मैंने इसके मतलब बताया था, but now we will study about it more. राइट? सो जो डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स हैं, उसमें मतलब मेटल टू मेटल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स, या फिर मेटल टू मेटल बॉन्ड एज वेल एज मेटल टू कार्बोनाइल बॉन्ड भी हो सकता है. जो मेटल टू कार्बोनाइल बॉन्ड है, ये 2 तरह के होते हैं, ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स, राइट, एज वेल एज टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स. So carbonyl groups that are attached to 2 metal atoms simultaneously, these are called bridging carbonyls. अभी अगली स्लाइड में हमें इसके मतलब ज़्यादा समझ आएगी. तो ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप्स जो कि 2 मेटल एटम्स के साथ साइमल्टेनियसली अटैच होते हैं,
उनको हम ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स कहते हैं। यानी इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप दरमियान में होगा और दोनों साइड पे मेटल के एटम्स होंगे, जबकि वो वाले कार्बोनाइल ग्रुप्स whereas those attached to only one metal atom, these are referred to as terminal carbonyls। ठीक है, तो जो सिर्फ एक ही मेटल एटम के साथ एक कार्बोनाइल अटैच होता है उसको हम टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स बोलते हैं। For example, the structure of Fe2CO9 diiron nonacarbonyl contains 3 carbonyl ligands that form bridges between the iron atoms. Also has 3 other carbonyl groups attached only to that atoms, right? अब इस स्ट्रक्चर के अंदर दिस इज Fe2CO9, so we have 2 metal atoms and 9 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स ऐसे हैं जो कि ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द आयरन एटम्स। तो वो हम अभी देख लेते हैं वो कौन से हैं। एक तो ये है, ठीक है, आप देख लें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप साइमल्टेनियसली अटैच है इस मेटल एटम के साथ और इस मेटल एटम के साथ भी। लाइकवाइज we have this carbonyl group which is attached to this and this, and then we have this metal atom which is attached to two iron atoms. So these are 3 carbonyl groups 1 2 3 which are bridging। इसके अलावा ये वाले 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स और ये 3 कार्बोनाइल ग्रुप्स, यू कैन सी दैट दे आर अटैच्ड ओनली टू वन मेटल एटम। तो इन तीनों को हम टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स बोलेंगे और इन 6 को 1 2 3 1 2 3। सो Fe2CO9 हैज 6 टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स एंड 3 ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप, यानी CO CO और फिर ये CO, एंड दिस इज अगेन द 3D स्ट्रक्चर, राइट। अब 3D स्ट्रक्चर में भी आपको 3 जो हैं वो ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये वाला है कार्बन ऑक्सीजन, एक ये वाला है कार्बन ऑक्सीजन और एक ये पीछे है कार्बन ऑक्सीजन। और इसी तरह ये वाले इस साइड पे 3 टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं और इस साइड पे ये 3 टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। So I hope that you people have understood the concept of bridging and terminal carbonyl groups. Now we will discuss the structures of Mn2CO10, Tc2CO10 and Re2CO10 which are dinuclear metal carbonyls। तो इन तमाम की स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी होगी और ये हम बेसिकली Mn2CO10 की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इट इन्वॉल्व मेटल मेटल बॉन्ड, दिस वन मेटल मेटल बॉन्ड, एंड ऑल द कार्बोनाइल्स दे आर टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स बिकॉज दे आर अटैच्ड ओनली टू वन मेटल एटम। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये वाले जो 4 कार्बोनाइल्स हैं इनकी पोजीशनिंग की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में है। तो स्क्वायर प्लेनर अगर स्ट्रक्चर में हो तो इसका मतलब है कि ये कार्बोनाइल उसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन में ये मैग्नीज एटम है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये 12 पाइकोमीटर उस प्लेन से हट के इनकी पोजीशन होती है जिसमें ये मैग्नीज एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगली स्लाइड पे इसको ज़्यादा तफसील से हम देखेंगे। एंड दिस इज द 3D स्ट्रक्चर, दीज आर द 2 मैग्नीज एटम्स विच आर ज्वाइंड बाय मेटल बॉन्ड। और इधर से ये आप देख सकते हैं कि हर मैग्नीज का एटम जो है ये जुड़ा हुआ है विद 1 2 3 4 5 कार्बोनाइल ग्रुप से, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th। लाइकवाइज this manganese atom this is also attached to 5th carbonyl groups। तो इसी तरह की सेम स्ट्रक्चर होगी Tc2CO10 की और Re2CO10 की। Right, so as I have previously mentioned, this is in written form which I have already explained। The structure of Mn2CO10 is sometimes drawn to appear as if 4 carbonyl ligands form a square planar structure around the manganese atom, but this is not the case। जो 4 कार्बोनाइल हैं वो उसी प्लेन में लाई नहीं करते जिसमें मैग्नीज एटम है, बल्कि ये 12 पाइकोमीटर अवे लाई करते हैं फ्रॉम द प्लेन कॉन्टेनिंग दी मैग्नीज एटम।
राइट, और इस वजह से एक्चुअली उसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। So now we'll discuss about two isomers of CO2 CO8, which is also binuclear metal carbonyl, that it will contain two carbonyl groups. So it has two isomers. In the first isomer you can see that we have only metal metal bond, और आपके पास सारे के सारे कार्बोनाइल्स जो हैं वो टर्मिनल कार्बोनाइल्स हैं। तो ये एक तरह का आइसोमर है कि हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड है और सारे के सारे कार्बोनाइल जो है टर्मिनल हैं। और ये इसका दूसरा आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है जिसमें यू कैन सी कि ना सिर्फ ये कि मेटल मेटल बॉन्ड है बल्कि ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल्स भी प्रेजेंट हैं along with terminal carbonyl. So this is about the two isomers of CO2 CO8. Now we will discuss about the structure of trinuclear metal carbonyls. As the name indicates, trinuclear metal carbonyl, it will contain three metal atoms. And trinuclear and higher compounds, they are thought of metal clusters. So here you can see that these metal atoms, these are arranged in the form of cluster, in the form of a trigone, ये triangular, ये तीनों मेटल एटम्स एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये Ru3CO12 की एग्जांपल है, और इसी तरह से OH3CO12 भी इसी तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल मेटल बॉन्ड है, इसके अलावा मेटल का जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड है, ऑल ऑफ दीज आर द टर्मिनल कार्बोनाइल्स। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनाइल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, this is the structure of Fe3CO12 which is again a trinuclear metal carbonyl। और इसमें देखें हमारे पास ये वाला मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर आर अगेन इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें जो पिछले वाली स्ट्रक्चर थी उससे डिफरेंस ये है कि इसमें ना सिर्फ ये कि टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बल्कि ये देख सकते हैं आप, इट आल्सो हैज द ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप। सो दिस इज द bridged carbonyl group. This is also a bridged carbonyl group. So in this way, in trinuclear metal carbonyls, we have the structure like on the previous slide, which has metal metal bond as well as only terminal carbonyls, while we have this structure Fe3CO12, which have this metal metal bond along with terminal carbonyl as well as bridging carbonyls. So now we will discuss about tetranuclear. Tetranuclear, as the name indicates, it will contain four metal atoms, and carbonyls containing four metal atoms. These are in the form of cluster. वो वाले मेटल्स जो टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स बनाते हैं, उनमें आता है कोबाल्ट है, रोडियम एंड इरिडियम। इसमें क्या है, मेटल एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहीड्रॉन विद 12 कार्बोनाइल लिगेंड्स। ठीक है, तो इसमें चार मेटल एटम्स इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहीड्रॉन जी अरेंज होते हैं, और इनके साथ 12 कार्बोनाइल लिगेंड्स लगे होते हैं। इसमें 9 जो हैं टर्मिनल पोजीशंस में होते हैं आउट ऑफ 12, एंड 3 दीज आर द ब्रिजिंग वंस। So this is the structure of cobalt tetracarbonyl, ठीक है, सॉरी टेट्रा कोबाल्ट कार्बोनाइल। और इसमें आप देख सकते हैं CO4 CO12 है, राइट। और इसमें अगर यहाँ पर कोबाल्ट की जगह रोडियम और इरिडियम लगा दें तो फिर भी उनकी यही स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो इसमें देखें ये जनरल स्ट्रक्चर है tetracarbonyl की। here you can see these metal atoms, these are arranged in the form of tetrahedron। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे ही पढ़ा कि इसमें 9 जो है टर्मिनल कार्बोनाइल्स हैं, और बाकी के 3 जो हैं वो ब्रिज्ड कार्बोनाइल ग्रुप हैं। अब ये देखें, ये एक ब्रिज्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट, और ये दूसरा ब्रिज्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये तीसरा ब्रिज्ड कार्बोनाइल ग्रुप्स है। इसके अलावा हमारे पास 9 जो हैं, 3 इधर और इस तरह से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। एनीवेज 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9, तो ये वाले 9 जो हैं ये टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा मेटल कार्बोनाइल्स या टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। This was a kind of very interesting lecture. I am hopeful that you people have understood. So if you have understood, please subscribe, like and share. Thank you very much. Allah Hafiz.